Our first chapter, chemical equation. Chemical equation is what? When two or more than two chemicals combine and form a new compound. The reaction is known as chemical reaction. This is irreversible process. For example, when A plus B combine, new compound AB is formed. For example, H2 plus O2, that will form H2O. This equation is known as parent equation. Parent equation, which is unbalanced. We have to balance this equation. Now we will balance number of atoms of H. Number of atoms of H means hydrogen 2 है बैलेंस है. ऑक्सीजन 2 है 1 है नॉट बैलेंस्ड. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि अब इक्वेशन बैलेंस है. लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए तो यहाँ पे 2 लगा देंगे. नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन. Four type of reactions are there. 4 types of reactions are there. First is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. And fourth is double displacement reaction. 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है जो कि केमिकल चेंज जिससे होता है. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. For example, combination reaction. When two elements or compounds combine each other, the reaction is known as combination. For example, Mg plus O2 MgO. But this reaction is not balanced. Magnesium 1 है 1 है, oxygen 2 है 1 है. So we have to put 2 here to balance the oxygen. But now magnesium get imbalanced. 2 magnesium 1 magnesium. Then we will add 2 here also. Now this is the balanced reaction. This is magnesium. This is oxygen. This is magnesium oxide. Magnesium oxide. एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका. H2 plus Cl2 HCl. But we have to balance it. 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है तो 2 लगा देंगे यहाँ पे. अब 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए.
Now one more example, Fe plus S, FeS, iron plus सल्फर, आयरन सल्फाइड। ये क्या है? आयरन सल्फर आयरन सल्फाइड, दिस इज आयरन सल्फाइड। थर्ड एग्जाम्पल हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, decomposition reaction. Decomposition reaction, these reactions are the opposite of combination reaction. In this, two elements combine and new compound is formed, but in this one compound is break up into two new elements or compounds. तो क्या definition होगी? When a compound or chemical break up into two or more than two compounds is known as decomposition reaction. For example, most commonly known example is calcium carbonate, CaCO3. It will decompose into CaO plus CO2. Calcium carbonate. This is calcium oxide and this is carbon dioxide. This reaction happens when we give heat to the calcium carbonate. If we are not giving heat, the calcium carbonate will not decompose. One more example, FeSO4. FeSO4 will break up into Fe2O3 plus SO2 plus SO3. This is ferrous sulfate, ferrous oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. This type of reaction is known as decomposition reaction. Now, third reaction is displacement reaction. Displacement reaction. When one element displaces the other one, the type of reaction is known as displacement. Means एक अपनी पोजीशन से हट जाता और दूसरे के साथ जाके लग जाता है. For example, AB plus C will form CB plus A. क्या बनता है? AB plus C that will form CB plus A. क्या हुआ इसमें? A हट गया और B जो है C के साथ जाके लग गया. अब इस रिएक्शन में मैंने ये नहीं लिखा कि इस रिएक्शन में मैंने ये नहीं लिखा कि BC plus A नहीं लिखेंगे. BC plus A नहीं लिखेंगे क्योंकि B क्या है इसमें? देखो, कोई भी कंपाउंड होता है उसमें पहले कैटायन होता है और एक एनायन होता है. कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज मोमेंटली, एनायन मतलब नेगेटिव. हमेशा किसी भी कंपाउंड में पहले पॉजिटिव चार्ज आती है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. तो एनायन बना, तो ये एनायन है, ये बाद में ही आएगा. ये क्या है? ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पहले आया. ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बाद में. एनायन है तो एनायन बाद में ही आएगा, एनायन बाद में आएगा. इसलिए वरना ये वाला कंपाउंड हमारा नहीं बनेगा. इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. हमारा बनता क्या है? अब क्या है? कॉपर, ये हमारा बन गया A, ये बन गया B, ये बन गया C.
ठीक है, तो हमारा कंपाउंड बन रहा है CB, C मतलब ZnSO4 प्लस कॉपर। ये हमारा था कॉपर सल्फेट, एंड दिस इज जिंक, और ये क्या बन जाता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। वाई some element displaces the other one? Because of their reactivity. The element or compound which is less reactive will get displaced by the higher reactivity one. अब जिंक, इसमें क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो क्या कर देगा, इसको जो है डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बना लेगा और Cu अकेला रह जाएगा। इसका और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ये वन एग्जाम्पल है। हमें हर एक रिएक्शन की 2 या 3 एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हम लेते हैं CuSO4 प्लस Fe ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा FeSO4 प्लस Cu, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल ले लेते हैं CuO प्लस Mg, क्या बन जाएगा MgO प्लस Cu। हर एक में क्या हो रहा है, लास्ट वाला पार्ट लास्ट में ही आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन वन एलिमेंट और कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय द अदर वन, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट थी तो एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही थी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे भी कुछ होगा, ये इसके पास चला जाएगा और इसके वाला जो है वो उधर चलेगा, मतलब डबल, दो चीजें अपनी जगह डिस्प्लेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की रिएक्शन होगी, AB प्लस CD विल फॉर्म, क्या बनाएगा AD प्लस CB। अब वही चीज मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होगा कि AC बना लो और BD बना लो, BD बना लो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, एनायन है, तो जो एनायन है वो एनायन की जगह पे ही जाएगा, जो कैटायन है वो कैटायन की जगह पे ही जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इस एक चीज हम बताती हूँ, इस वाली रिएक्शन को हम एक और चीज बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन reactions. Double displacement reaction is also known as precipitation reaction. इसका एग्जाम्पल करते हैं, एक बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट दैट विल फॉर्म BA। ये क्या है, हमारा A है, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D, तो क्या बना AD BaSO4 प्लस CuCl2। बेरियम क्लोराइड, एक्सक्यूज मी, दिस इज कॉपर sulfate, this is what barium sulfate and copper chloride. This type of reactions happen in the double displacement type of reaction. एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम, यही ले लेते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl बनेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगा देंगे, now equation is balanced. Barium chloride plus sodium sulfate, that will form barium sulfate and sodium chloride. These are the type of reactions which we will read in this whole complete chapter. These 4 type of reactions are in our syllabus. Next, जो ये रिएक्शन होती है ये 2 टाइप से होती है। होती क्या, इनका मैकेनिज्म क्या है, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 2 टाइप्स ऑफ reactions are these actually. First is exothermic
reaction, and second one is endothermic reaction. When heat is given out from the reaction, when heat is given out, exo means बाहर निकलना, heat का बाहर निकलना. When heat is given out from the reaction, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मी. जैसे दो चीजें, दो कंपाउंड मिले और हीट निकल रही है, प्रोसेस गर्म हो गया, कंपाउंड्स वैसे गर्म हो, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक क्या होती है? व्हेन हीट इज गिवन टू द रिएक्शन, व्हेन heat is given to the reaction, this type of reaction is endothermic. अगर हम हीट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी. कुछ रिएक्शंस गर्म करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करके होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. रिडोक्स रिएक्शन. नेक्स्ट इज redox reaction. Redox word is made up of two words, reduction and oxidation. किससे मिलके बना है? Reduction and oxidation. Two type of reactions happen, reduction and oxidation. इसमें होता क्या है देख लेते हैं. रिडक्शन में क्या होता है? reduction, addition of hydrogen and removal of oxygen. Addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. और इसका ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन में. होता है क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज redox reaction. एक एग्जाम्पल में क्लियर कर लेते हैं इस चीज को. एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका CuO plus H2. Cu plus H2O. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है? देखो, कॉपर से क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर. मतलब ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन से H2 से H2O बन रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. पेपर में पक्का आता है 100% कि किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन भी है, आपको पता चले. अब दो टाइप की रिएक्शन और होती है हमारे पास. कोरोजन एंड रैंसिडिटी. कोरोजन एंड रैंसिडिटी. कोरोजन में क्या होता है? पहले रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. क्या होता है? oxidation of iron is known as rusting, but oxidation of any metal is known as corrosion. Oxidation of any metal is known as corrosion. And rancidity is what? कभी सुना है कि फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होना? फूड आइटम्स, yes, that thing is rancidity. It means oxidation of fats is known as rancidity. Like kurkure chips, these are packed materials, packed stuff, foodstuffs. When they store for a long time, they produce a bad smell. This happen due to the rancidity, क्योंकि ये जो फ्राइड होते हैं, ऑयल्स में फ्राइड होते हैं, उन ऑक्सीजन जब पैक करते हैं तो उस अगर पैकिंग मटेरियल जो गैस होती है, एक हवा होती है उसमें जिससे वो पैक होते हैं, फ्लफी रहती है ताकि वो ब्रेकेज ना हो चिप्स की, तो उस एयर से क्या होता है? उस फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसे हम रैंसिडिटी, फाउल स्मेल, इट क्रिएट्स फाउल स्मेल. टू प्रिवेंट दिस स्मेल, हम इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? टू प्रिवेंट दिस स्मेल, वी फ्लश
nitrogen to prevent the rancidity. We flush nitrogen to prevent the rancidity. This is our complete chapter. This is a small video for the first chapter. In this chapter, one more thing sometimes asked: balancing and unbalancing of reaction. We will do that balancing the next class. Just read and go through the NCERT book with text questions and in-text questions. Do text question, in-text question plus exemplar. एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ये सब आपको आने चाहिए. इसके बाद एक बार रिवाइज कर लें. कुछ डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी.